गणपति रूपाय धरणीभूताय शान्तये। परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। जय स्वामीनारायण। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं अरियाशा। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं वर्षतद भारतम नाम भारती यत्र संतति। महासागर के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में स्थित देश को भारत कहा जाता है और यहाँ के लोग माँ भारती की संतान हैं। विष्णु पुराण के अनुसार यही भारत है। भारत के अनेक नामों में से एक है वेद भूमि। ये भूमि हमेशा अपने महान ज्ञान के लिए प्रसिद्ध रही है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि
हम में से बहुत सारे लोग इस महान और प्राचीन भारतीय ज्ञान और वेदों से अवगत नहीं है। आज हम नैमिषारण्य विद्यालय के छात्रों द्वारा उपनिषदों के विषय पर एक सुंदर नाटकीय प्रस्तुति करने का प्रयास कर रहे हैं। प्राचीन भारतीय ज्ञान को 3 प्रकार से संरक्षित किया गया है: मंदिर पर शिलालेख, हस्तलिखित ग्रंथ और गुरु शिष्य परंपरा। इन तीनों में से गुरु शिष्य परंपरा भारतीय ज्ञान प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण तत्व रहा है। इसी गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से वेदों का ज्ञान पूरे विश्व में प्रसार और प्रचार हुआ है। इसी इतिहास का अनुसरण करते हुए नैमिषारण्य के गुरु और शिष्य के सम्मिलित प्रयास से वेदों की इस ज्ञान गंगा को आपसे परिचय करवाएंगे। मैं हाथ जोड़कर आपसे अनुरोध कर रही हूँ कि आप सभी लोग बिना बोले शांति से हमारे कार्यक्रम का स्वाद लीजिए। अगर एक भी व्यक्ति ने बात की तो आजू बाजू वाले सारे लोग परेशान हो जाएंगे और कार्यक्रम का स्वाद नहीं ले पाएंगे। कृपया अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए या साइलेंट मोड पर रख दीजिए। आज एक छोटी बच्ची इतने बड़े लोगों से अनुरोध कर रही है, तो आप सभी लोग मेरी बात माने और पूरे मन से हमारे कार्यक्रम का स्वाद लीजिए। धन्यवाद। Good morning. I am Avi Kundalia standing before you, and I'll be here to give you a short introduction about what we are going to do today. The country that lies in the north of the ocean and south of Himalayas is called Bharat, and the people here are the children of Ma Bharati. According to Vishnu Puran, this is Bharat. One of the many names of India is Ved Bhumi. This land has always been famous for its great knowledge. The unfortunate thing is that many of us are not aware of the great and ancient Indian knowledge and Vedas. Today, we are trying to perform a beautiful play on the topic of Vedas and Upanishads by the students of Naimisharanya School. Ancient Indian knowledge has always been preserved in 3 ways: inscriptions on temples, handwritten scriptures, and Guru Shishya tradition. Out of these 3, the Guru Shishya tradition has been the most important element of the Indian knowledge system. Through this Guru Shishya tradition, the knowledge of Vedas has been spread and propagated all over the world. Through the combined efforts of gurus and disciples of Naimisharanya School, we introduce you the Gyan Ganga of Vedas, Vedic knowledge, by following the footsteps of history. A humble request to all the guests, especially the ones sitting beside Swamiji, not to talk for the next 1 hour and 30 minutes. Please keep your phone on silent mode. I would like to repeat, please keep your phone on silent mode. Please don't take me of a little girl giving a speech in front of you. I am saying this all in seriousness, and I'll be here with the music team keeping an eye on everyone. Please enjoy the program. Thank you. A very good morning to all of you. Myself Ariha Shah, and today I will be presenting the disclaimer for this program. The program is a compilation of different series. We have tried our level best to stick to the most popular beliefs and stories. In case anyone feels otherwise, we apologize for the same in advance. Also, the Vedas are an enormous volume of 4 parts: the Rig Veda, the Samveda, the Yajur Veda, and the Atharva Veda, which have been reduced to a performance of 1.5 hours. So, we have had to minimize it because of the constraint of time. We respect all faiths, religions, and communities, and do not in any manner intend to disrespect, despair, insult, or disparage the beliefs, feelings, sentiments of any person, community, religion, society, and their culture, custom, practice, and tradition.
No animals were injured or harmed directly or indirectly during the making of this program. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for educational performances. Also, I would like to bring this to your kind notice that our choir group will be performing all the shlokas and the songs live. I repeat, our choir group will be performing all the shlokas and the songs live. So, please don't forget to keep an eye on them as well. Enjoy the program. Thank you. अतः श्री पंचभूताय शान्ति श्री गणेशाय नमः। वसुन्धराय विद्महे भूतदात्राय धीमहि तन्नो भूमि प्रचोदयात् तन्नो भूमि प्रचोदयात्। हे सृष्टिमूलकर्ताय जीवमातृस्वरूपिणि त्यागसहनप्रतिरूपाय धरणीभूताय शान्तये। हे सृष्टिमूलकर्ताय जीवमातृस्वरूपिणि त्यागसहनपतिरूपाय धरणीभूताय शान्तये। जलबिम्बाय विद्महे नीलपुरुषाय धीमहि तन्नो वरुण प्रचोदयात् तन्नो वरुण प्रचोदयात्। ज्ञानधाराय वरुणाय प्रकृतिपुरुषविकासाय पापसंहारनदिरूप जलभूताय शान्तये। ज्ञानधाराय वरुणाय प्रकृतिपुरुषविकासाय पापसंहारन विरूप जलभूताय शान्तये। महाज्वलाय विद्महे अग्निदेवाय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात् तन्नो अग्नि प्रचोदयात्। ज्ञानरूपाय देवाय यज्ञसम्पूर्णप्राप्तये देवतातृप्तिकाराय अग्निभूताय शान्तये। ज्ञानरूपाय देवाय यज्ञसम्पूर्णप्राप्तये देवतातृप्तिकाराय अग्निभूताय शान्तये।
मंगलम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मैं सूत्रधार, कथा को एक सूत्र में पिरोने वाला सूत्रधार। आज मैं आपसे एक कहानी कहने वाला हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कहानियां आपको प्रिय हैं। यह कहानी किसी राजा, किसी राज परिवार या किसी अवतार की नहीं। यह कहानी मेरी और आपकी है। वास्तव में कहानी पूरी मानव जाति की है। आप कह सकते हैं कि आप अपनी कहानी जानते हैं। क्या आप जानते हैं हमारे भीतर एक और व्यक्ति छिपा हुआ है जो हमें दिखाई नहीं देता, पर वो हर पल, दिन और रात खुद को अभिव्यक्त करने के लिए लड़ रहा है। वो सारे बंधनों को तोड़ने के लिए लड़ रहा है, वो शांति के लिए लड़ रहा है, वो आनंद की अनुभूति के लिए लड़ रहा है। सुना आपने? वो नौजवान खुद को रोक ना पाया, सिग्नल तोड़ के भाग गया, क्योंकि वो इस बंधन को स्वीकारना नहीं चाहता था। क्यों आदमी समुद्र की गहराइयों को, सूरज और चांद की ऊंचाइयों को मापना चाहता है? तो क्यों वो पर्वत की श्रेणियों को जीतना चाहता है? क्यों वो संसार की सारी सीमाओं को तोड़ देना चाहता है? क्या वो जानता है कि वो असीमित है? क्यों वो मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाहता है? क्या वो जानता है कि वो अमर है? सीमित से असीमित और मरण से अमरत्व की इस यात्रा पर हम सभी जा रहे हैं, पर हम देख नहीं पा रहे। पूषण एकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन समूह तेजः यत्ते रूपम कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। हे जगत पोषक सूर्य, तू अपनी किरणों को हटा ले, अपने तेज को समेट ले। तेरा जो अतिशय कल्याणमय रूप है उसे मैं देखता हूं। यह जो पुरुष है वो मैं हूं। पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत पठ्यते ज्योतिरामयनं चक्षुः निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षाज्ञानं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम् तस्मात् सागमनित्यैव ब्रह्मलोके महीयते। वेद के पैर छंद, हाथ कल्प, आंखें ज्योतिष, कान निरुक्त, नाक शिक्षा और मुख व्याकरण है। इसीलिए वेदांग युक्त वेद पढ़ने से ही व्यक्ति ब्रह्मलोक में महान हो जाता है। परम पूज्य सूत्रधार जी, आंखें खोलिए और संसार के सत्य पर दृष्टि डाली। मेरे तो भाग फूट गए, भाग ही फूट गए। अभी अभी जब मैं घर से बाहर गया था तो रास्ते में मुझे ज्योतिष मिला। उसने बताया, अरे सर्कस में जाओ, वहाँ भाग्य तेरा इंतजार कर रहा है। तो मैं रिजाइन करके आ रहा हूँ। तो ये महान ज्योतिषी कौन है? सूत्रधार जी, उसे छोटा मोटा ज्योतिषी मत समझो। अरे वो अपने आप को भास्कराचार्य जी का वंशज कहता है। भास्कराचार्य? हाँ? जानते भी हो भास्कराचार्य कौन थे? वो वसुंधराय विद्महे भूतदात्राय धीमहि तन्नो भूमि प्रचोदयात् तन्नो भूमि प्रचोदयात्। हे सृष्टिमूलकर्ताय जीवमातृस्वरूपिणे
गणपतिरूपाय धरणीभूताय शान्तये जलबिम्बाय विद्महे नीलपुरुषाय धीमहि तन्नो वरुण प्रचोदयात् तन्नो वरुण प्रचोदयात् ज्ञानधाराय वरुणाय प्रकृतिपुरुषविकासाय पापसंहारनदीरूप जलभूताय शान्तये ज्ञानधाराय वरुणाय प्रकृतिपुरुषविकासाय पापसंहारनविरूप जलभूताय शान्तये महाज्वलाय विद्महे अग्निदेवाय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात् तन्नो अग्नि प्रचोदयात् ज्ञानरूपाय देवाय यज्ञसम्पूर्णप्राप्तये देवतातृप्तिकाराय अग्निभूताय शान्तये ज्ञानरूपाय देवाय यज्ञसम्पूर्णप्राप्तये देवतातृप्तिकाराय अग्निभूताय शान्तये अन्धवासाय विद्महे उग्ररूपाय धीमहि तन्नो वायु प्रचोदयात् तन्नो वायु प्रचोदयात् भीमहनुमा जन्मकार श्वासप्राणा अपालाय बुद्धिभाव समानाय वायुभूताय शान्तये भीमहनुमा जन्मकार श्वासप्राण अपालाय बुद्धिभाव समानाय वायुभूताय शान्तये आकाशाय च विद्महे नीलवर्णाय धीमहि तन्नो गगन प्रचोदयात् तन्नो गगन प्रचोदयात् मूलवर्णा व्यापिताय सृष्टिपितृस्वरूपये सूर्यचन्द्रग्रहगमनाय गगनभूताय शान्तये नीलवर्णा व्यापिताय सृष्टिपितृस्वरूपये सूर्यचन्द्रग्रहगमनाय गगनभूताय शान्तये शान्ति शान्ति भुवः शान्ति भुवः शान्ति अग्निशान्ति अग्निशान्ति वायुशान्ति वायुशान्ति वरुणशान्ति वरुणशान्ति सूर्यशान्ति सूर्यशान्ति चन्द्रशान्ति सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्ति
सूत्रधार, कथा को एक सूत्र में पिरोने वाला सूत्रधार। आज मैं आपसे एक कहानी कहने वाला हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कहानियां आपको प्रिय हैं। यह कहानी किसी राजा, किसी राज परिवार या किसी अवतार की नहीं। यह कहानी मेरी और आपकी है। वास्तव में कहानी पूरी मानव जाति की। आप कह सकते हैं कि आप अपनी कहानी जानते हैं। क्या आप जानते हैं हमारे भीतर एक और व्यक्ति छिपा हुआ है जो हमें दिखाई नहीं देता, पर वो हर पल, दिन और रात खुद को अभिव्यक्त करने के लिए लड़ रहा है। वो सारे बंधनों को तोड़ने के लिए लड़ रहा है, वो शांति के लिए लड़ रहा है, वो आनंद की अनुभूति के लिए लड़ रहा है। सुना आपने? वो नौजवान खुद को रोक ना पाया, सिग्नल तोड़ के भाग गया, क्योंकि वो इस बंधन को स्वीकारना नहीं चाहता था। क्यों आदमी समुद्र की गहराइयों को, सूरज और चांद की ऊंचाइयों को मापना चाहता है? तो क्यों वो पर्वत की श्रेणियों को जीतना चाहता है? क्यों वो संसार की सारी सीमाओं को तोड़ देना चाहता है? क्या वो जानता है कि वो असीमित है? क्यों वो मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाहता है? क्या वो जानता है कि वो अमर है? सीमित से असीमित और मरण से अमरत्व की इस यात्रा पर हम सभी जा रहे हैं, पर हम देख नहीं पा रहे। भूषण एकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन समूह तेजः यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। हे जगत पोषक सूर्य, तू अपनी किरणों को हटा ले, अपने तेज को समेट ले। तेरा जो अतिशय कल्याणमय रूप है उसे मैं देखता हूं। यह जो पुरुष है वो मैं हूं। पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत पठ्यते ज्योतिरामयनं चक्षुः निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षाज्ञानं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम् तस्मात् सागमनित्यैव ब्रह्मलोके महीयते। वेद के पैर छंद, हाथ कल्प, आंखें ज्योतिष, कान निरुक्त, नाक शिक्षा और मुख व्याकरण है। इसीलिए वेदांग युक्त वेद पढ़ने से ही व्यक्ति ब्रह्मलोक में महान हो जाता है। परम पूज्य सूत्रधार जी, आंखें खोलिए और संसार के सत्य पर दृष्टि डाली। मेरे तो भाग फूट गए, भाग ही फूट गए। अभी अभी जब मैं घर से बाहर गया था तो रास्ते में मुझे ज्योतिष मिला। उसने बताया, अरे सर्कस में जाओ, वहाँ भाग्य तेरा इंतजार कर रहा है। तो मैं रिजाइन करके आ रहा हूँ। तो ये महान ज्योतिषी कौन है? सूत्रधार जी, उसे छोटा मोटा ज्योतिषी मत समझो। अरे वो अपने आप को भास्कराचार्य जी का वंशज कहता है। भास्कराचार्य? हाँ? जानते भी हो भास्कराचार्य कौन थे? वो महान थे, बहुत महान थे। महान तो थे, पर थे क्या? नहीं जानते ना? तो चलो, आज मैं तुम्हारा परिचय भारत भूमि के उस सुपुत्र से करवाती हूँ जिस नाम का प्रयोग पाखंडी करते हैं, पर जिसके बारे में जानते ज्यादा कुछ नहीं। तो मित्रों, आज हम खेलते हैं कहानी भारत के महान मनीषी, गणितज्ञ, खगोल शास्त्र कवि भास्कराचार्य की। लीलावती, लीलावती, तुम्हारे बाबा तुम्हें बुला रहे हैं। पर अब खेल का निर्णय कैसे होगा? निर्णय हो चुका, तुम जीती, मैं हारी। मेरी बिटिया कभी हार नहीं सकती, वो भी धूली कर्म में। पर धूली कर्म तो पार्टी पर करते हैं बाबा। हाँ, पर वहाँ तुम बच्चे पूरी भूमि को पार्टी बना देते हो।
और उस पर कंकर से वर्ग और आयत के आकार खींच देते हो। तो आज से हम पाटी गणित अर्थात अंक गणित सीखने का काम आरंभ करते हैं। संख्याएं तो तुम्हें आती है ना? हाँ बाबा। तो लिखो 1। अब इसके आगे एक शून्य लगा दिया तो 10, और एक और शून्य लगाया तो शत, 100, और अगर एक और सहस्त्र, फिर एक और 10 सहस्त्र। सरल भाषा में कम पढ़े लोग इसे 10 सहस्त्र या 10,000 कहते हैं। हम इसे कहेंगे अयुत। अयुत। फिर लक्ष्य, प्रयुत, कोटि, अर्बुद, अब्ज, खर्ब, निखर्ब, महापद्म, शंकु, चलती, अंत्य, मध्य, परार्ध। बाबा बाबा परार्ध अर्थात एक की संख्या के आगे 17 शून्य। तू अभी से घबरा गई? अरे मैंने तो एक के आगे 53 शून्य तक की संख्याओं के नाम रख दिए। पर एक शून्य लगाने से तो संख्या 10 गुना बढ़ जाती है, फिर 50 शून्य लगाने से पता नहीं कितनी बड़ी हो जाएगी संख्या। पर इतनी बड़ी संख्या का हमें क्या करना? इतने तो शायद तारे भी नहीं होंगे आसमान में। तारे कितने हैं ये मैं नहीं जानता, किंतु इतना अवश्य जानता हूँ कि हमसे इनकी दूरी बताने के लिए एक के आगे 50 तो क्या 100 शून्य भी कम पड़ेंगे। इतने दूर होते हैं तारे धरती से? कुछ तारे कुछ पास भी होते हैं, जैसे हमारा सूर्य। सूर्य? हाँ, सूर्य तो सूर्य है, वह तारा थोड़ी ना है। तारे तो रात में चमकते हैं। सारे तारे भी बड़े बड़े सूर्य होते हैं और हमारा सूर्य एक छोटा सा तारा, किंतु वो हमारे पृथ्वी के इतने पास है कि जब वो सामने आ जाता है तो उसकी चमक में बाकी के तारे दिखना बंद हो जाते हैं। पर रात में सूर्य कहाँ चला जाता है? सूर्य कहीं नहीं जाता, बस हमारी पृथ्वी घूम जाती है। कैसे कैसे? मैं समझी नहीं। जैसे हमारा घर कहीं नहीं जा रहा, सामने के सामने खड़ा है, किंतु यदि हमारी बिटिया घूम गई तो हमारा घर वहीं रहकर भी ओझल हो गया ना। हाँ। बस ऐसे ही चलती है सूर्य और पृथ्वी की दिन और रात की आंख मिचौली। समझ गई ना? हमारे वैदिक विद्वान तो ईश्वर की शरण में ना जाकर बुद्धि की शरण में जाने की बात कर गए। इयं विसृष्टिर यत आवभोव यदि वा दगे यदि वा न यो अस्माध्यक्ष परमे व्योमन सौंग वेद यदि वा न वेद। इसका अर्थ बताएंगे भास्कराचार्य? तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे, क्या किसी ने इसे रचा है? जो आकाश के ऊपर बैठा हुआ है वही इस बात को जानता है, या शायद वो भी नहीं। पापा बच्चा, पापा बच्चा, अरे बेटे क्या हुआ? पापा पापा देखो कैसी मूर्खता की बात कर रहा है भैया। मैंने इससे पूछा ये पृथ्वी जिस पर हम टिके हुए हैं वो किस पर टिकी है? तो मैंने उत्तर दिया 4 बड़े हाथियों पर। और हाथी किस पर टिके हैं? एक बहुत बड़े कछुए पर। पर कछुआ कहाँ बैठा है? पानी पर। पानी कहाँ है? पृथ्वी पर। पृथ्वी किस पर? तेरे सर पर। क्यों? क्या हम ये नहीं मान सकते कि पृथ्वी निराधार है? पृथ्वी में स्वयं एक धारणात्मिका शक्ति है, ये भी तो संभव है। परंतु ये कैसे संभव है? वस्तुओं में विचित्र शक्ति होती है, जैसे पृथ्वी में आकर्षण शक्ति। इस आकर्षण शक्ति से वो सभी भारी पदार्थों को अपनी ओर खींचती है। इस आकर्षण शक्ति के कारण हर उछाली हुई वस्तु वापस धरती पर आ गिरती है। पर बाबा देखो, हमारे चारों ओर का आकाश निराधार है, तो हमारी पृथ्वी निराधार क्यों नहीं हो सकती? कुंडली में जो लिखा होता है और भाग्य में जो बदा होता है जरूरी नहीं एक ही हो। इसलिए घन चक्कर छोड़ सर्कस का चक्कर, नाटक में मन लगा। वाह वाह सूत्रधार जी वाह क्या स्टोरी को घुमाया है और मेरी स्टोरी को दी एंड लगवाया है। ब्रह्मायेन कुलालवत् नियमितो ब्रह्माण्ड भाण्डोदरे विष्णुरेण दशावतार गहने क्षिप्तो महासंकटे रुद्रो येन कपालपाणिपुटके भिक्षाटनं कारितः सूर्यो ब्राह्मति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे। उस कर्म को प्रणाम जिसकी शक्ति से ब्रह्मा कुम्हार की तरह संसार की रचना में रत है। उस कर्म को प्रणाम जो महान विष्णु को बार बार अवतार ले दुखों का भोग करने में विवश करता है। उस कर्म को प्रणाम जिसने रुद्र को खोपड़ी के भिक्षा पात्र में
भिक्षा मांगने पर विवश किया है, उस कर्म को प्रणाम जो नित्य सूर्य को घूमने पर विवश करता है। यद्यप्येन च शुष्काय स्थानमे ब्रूयात् जायेरन्ने वास्मिन् शाखा प्ररोहेयो पलाशानिति। तो ये ज्ञान अगर सूखे ठूंठ को भी कहा जाए तो उसमें से शाखाएं निकल आती हैं और उसमें पत्ते फूटने लगते हैं। ये छांदोग्य उपनिषद का घोष है। उस ज्ञान को ढूंढने के पहले हम उसके मूल तक पहुंचे, जिसे हम वेद कहते हैं। इसलिए कि वेद भारतीय चिंतन और दर्शन का आधार है। इसलिए उपनिषदों की यात्रा के पहले हम वेद और भारतीय जीवन के आधार स्तंभ, 4 पुरुषार्थ, 4 आश्रम और 4 वर्णों को समझें। और जैसे जैसे हम वेदों से उपनिषद की यात्रा पर पहुंचेंगे, ज्ञान पर पड़ा अंधकार का पर्दा खुलता जाएगा। समानीव आपूति समाना हृदयानिव समानमस्तु वो मनो यथाव सुसहासति। तुम्हारे निश्चय एक हो, तुम्हारे हृदय एक हो, तुम्हारे विचार एक हो, ताकि तुम सब सुखपूर्वक एक साथ रह सको। लगता है आज शहजादा अपने अनुवाद से बहुत खुश हैं। मुझे अपनी इस किताब का उन्वान मिल गया है। अरे वाह, मैंने भी कई बार सोचा कि उपनिषदों के इस फारसी अनुवाद का क्या नाम रखा जाएगा। एक महान रहस्य। जी हाँ, और इसमें मेरे परदादा अकबर का इसमें शरीफ भी शामिल है। गोस्वामी तुलसीदास जी से मिलने के लिए वो काशी तक चले गए थे। काशी तो मैं भी जाना चाहता हूँ पंडित जी। कितना कुछ है वेदों में जो मेरी समझ से परे है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वेदों और उपनिषदों का मर्म समझने के लिए दारा शिकोह काशी पहुंचता है। दारा शिकोह और बाबा लाल दास के बीच वेदों पर वार्ता चल रही है। वे तो है ही हमारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। फिर वे प्रश्न चाहे जीवन के बारे में हो, समाज के बारे में हो, दर्शन के बारे में हो, या फिर अध्यात्म के बारे में ही क्यों ना हो। प्रकृति के कण कण से लेकर ब्रह्मांड तक कुछ भी नहीं छूटा है वेदों में। वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। सच को जानने, समझने और पाने की विद्या को ही वेद कहते हैं। पर यह ज्ञान सामान्य ज्ञान नहीं है, ये ईश्वरीय ज्ञान है जिससे ऋषियों ने साक्षात्कार किया था। वास्तव में वेद तो एक जीवन की किताब है, और ये किताब अपौरुषेय है, यानी वेदों को किसी मनुष्य ने नहीं लिखा है। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे ऋषियों ने उन मंत्रों को सुना और फिर ऋषियों के द्वारा ही वो मंत्र उनके शिष्यों तक श्रवण यानी सुनने के माध्यम से पहुंचते हैं। ऋषियों ने जो ज्ञान सुना और देखा वो वेद कहलाया। फिर उस संपूर्ण ज्ञान को 4 हिस्सों में बांटकर 4 वेद बने। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। बाबा, वेद तो 4 हैं, परंतु वेदत्रयी का क्या अर्थ है? वेदों को पद्य, गद्य और गान के आधार पर भी बांटा गया है। पद्य को ऋक, गद्य को यजुस और गान को साम का नाम दिया गया है। पद्य, गद्य और गान की ये त्रिवेणी ही वेदत्रयी कहलाई। बाबा, मैंने कहीं पढ़ा था कि वेदों में लाखों मंत्र थे और महर्षि व्यास ने उन्हें 4 हिस्सों में बांटा। ठीक सुना है तुमने। इतना बड़ा था वेदों का वांग्मय कि उसे याद कर पाना असंभव हो रहा था। इसलिए
द्वापर युग के प्रारंभ में कृष्ण द्वैपायन व्यास ने वेदों को 4 हिस्सों में बांट दिया और अपने 4 प्रमुख शिष्यों को एक एक वेद की शिक्षा और प्रसार की जिम्मेदारी दी। इस तरह ऋग्वेद पैल के जिम्मे, यजुर्वेद वैशंपायन के जिम्मे, सामवेद जैमिनी के जिम्मे और अथर्ववेद सुमंत के जिम्मे आया है। चूंकि द्वैपायन कृष्ण ने वेदों का फिर से विभाजन किया था, इसलिए वे वेदों को बांटने वाले वेद व्यास कहलाए। तो ये तो वेदों का विभाजन हुआ बाबा, और वेदों का वर्गीकरण क्या है? जैसे वेदों के 4 हिस्से हुए, वैसे ही हर वेद के 4 मुख्य हिस्से हैं। वे हैं संहिता या मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। और इन्हीं के आधार पर वेदों का कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड में वर्गीकरण कर दिया गया। यानी जिन मंत्रों और ब्राह्मणों का संबंध धार्मिक क्रियाओं से था वे कर्मकांड, जिन आरण्यकों का संबंध ध्यान से था वे उपासना कांड, और जिनका संबंध आध्यात्मिक ज्ञान से था वे ज्ञान कांड में बांट दिए। इसलिए उपनिषद वेदों का ज्ञान कांड है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तुम पर दीन और मजहब को नापाक करने का जुर्म साबित हो चुका है और आज तुम्हारी मौत का वक्त आ चुका है। ले चलो इसे। शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आप शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति। सच कहा था दारा ने कि सच कभी नहीं मरता, अंधेरा कभी नहीं जीतता। दारा शिकोह के किए गए फारसी अनुवादों के जरिए ही उपनिषद और पुराणों को 18वीं सदी में फ्रेंच और जर्मन विद्वानों ने जाना। जर्मन वेद पाठी मैक्स म्यूलर ने वेदों पर शोध किया और पूरी दुनिया को वेदों के प्रकाश से परिचित करवाया। दारा शिकोह जैसे विद्वानों के अनुवाद के द्वारा दुनिया में फैली वेद की वाणी सदा अक्षय रहेगी। ऊर्ध्वबाहुर्विरौमेशः न च कश्चित् शृणोति मे धर्मादर्थश्च कामश्च स किमर्थं न सेव्यते। महर्षि व्यास हाथ उठा उठा कर कह रहे हैं कि धर्म का पालन करो, उसी से तुम्हें अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी, पर उनकी कोई नहीं सुनता। जीवन का आधार पुरुषार्थ, पुरुषार्थ जीवन का लक्ष्य, लक्ष्य उस मार्ग का जिसकी दिशा सही है, लक्ष्य उस पाथेय का जो हमारी यात्रा का साथी है, लक्ष्य धर्म पुरुषार्थ का, लक्ष्य सुरक्षा का जो मनुष्य की मौलिक आवश्यकता है, लक्ष्य संपत्ति का जो सुख का साधन है, लक्ष्य अर्थ पुरुषार्थ का, लक्ष्य समाधान का, सुख का, आनंद का, लक्ष्य काम पुरुषार्थ का, लक्ष्य धर्म अर्थ और काम पुरुषार्थ की प्राप्ति के बाद उस भाव का जो उसे धर्म अर्थ और काम के परे, सुख दुख के परे ले जाए, लक्ष्य मोक्ष पुरुषार्थ का। मनुष्यता के इस मौलिक अधिकार की घोषणा करते हैं प्राचीन ऋषि, हमारा प्राचीन दर्शन। वेद व्यास घोषणा करते हैं कि हे मनुष्य, धर्म का पालन कर, क्योंकि उसी से तुझे सभी सुख मिलेंगे। कौन है वह जो जितेंद्रिय हो रहा है? कौन है वह जो ब्रह्मलीन हो रहा है? कौन है वह जो उस विद्या को पा रहा है जिसे पाने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता? कौन है वह जो सुख दुख के परे जा रहा है? ये शोक कैसा?
कौन है वहां जो अपने चरों के साथ आखेट के लिए इस तपोवन की ओर बढ़ा चला आ रहा है? सावधान, सावधान! यहां महर्षि विश्वामित्र का तप अपनी चरम सीमा पर है। किसने इस तपोवन की शांति को भंग किया? मैं न जानता था कि आप यहाँ तपस्या कर रहे हैं। तूने किसी पशु का नहीं, मेरे तप का आखेट किया है। क्षमा भगवान, मुझसे अपराध हुआ। क्या अभिशाप दूं मैं तुझे? जिस क्षण को पाने के लिए मैंने अपना राज्य छोड़ा, अपनी संपत्ति छोड़ी, बरसों कठिन तप किया, मोक्ष और परम ज्ञान के उस क्षण को मैं पाने ही वाला था। क्षमा भगवान, क्षमा। जो चाहे दंड दें, पर मुझे अभिशाप न दें। मेरी प्रजा नष्ट हो जाएगी। प्रभु चाहे तो मुझसे मेरा राज्य ले लें, मेरी संपत्ति ले लें, मेरा वैभव, मेरा पुण्य ले लें। क्या है तेरा पुण्य? धर्म। मैं आज तक धर्म पर अटल रहा हूँ देव। कौन है तू? हरिश्चंद्र, अयोध्या नगरी का सेवक हूँ देव। ऋषि वशिष्ठ मेरे आचार्य हैं। धर्म पर अटल रह सकेगा तू? मेरे आचार्य की मुझ पर कृपा है। तो दे, अपने अपराध के बदले में मुझे अपना राज्य दे, अपनी प्रजा दे, अपना कोष दे। इसी क्षण से मेरा राज्य, मेरी प्रजा, मेरा कोष आपका हुआ करें। धर्मो रक्षति रक्षता। अब हमें आज्ञा दीजिए। हरिश्चंद्र, दंड दिए बिना कहाँ जा रहे हो? मैं समझा नहीं प्रभु। राज्य तो तुमने मुझे मेरे तपभंग के बदले में दिया है, पर तपभंग के अपराध के प्रायश्चित का दंड कौन देगा? दान दिया है तो दक्षिणा कौन देगा? अब दक्षिणा देने के लिए मेरे पास कुछ शेष नहीं है महर्षि। ये धर्म पर अटल रहने वाला हरिश्चंद्र कह रहा है तुमने राज्य खोया है, पुरुषार्थ नहीं। मुझे कुछ समय दीजिए। 1 मास और 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारा दंड। स्वीकार है भगवान। कहां से लाऊं 1000 स्वर्ण मुद्राएं? कौन सा काम मुझे दिला सकता है इतनी मुद्राएं? इतनी मुद्राएं तो मैं स्वयं को बेच भी दूं तो। सुनो सुनो सुनो, धर्म नगरी के लोगों सुनो, मुझ पर धर्म संकट आन पड़ा है, इसलिए मैं खुद को यहाँ पर बेच रहा हूँ। जो चाहे मुझे खरीद सकता है, जो चाहे मुझसे करवा सकता है। ऐसा कौन सा संकट आन पड़ा जिसके कारण तुम स्वयं को बेच रहे हो? वचन में बंधा हूँ, अपनी व्यथा कह नहीं सकता। आर्य, खरीदोगे मुझे? वचन जो हर दिन पुत्र पिता को देता है, पिता पुत्र को देता है। वचन जो हर दिन राजा प्रजा को देता है। वचन जो हर दिन मनुष्य मनुष्य को देता है। ऐसे वचन की रक्षा के लिए हरिश्चंद्र 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा जुटाने काशी पहुंचे। क्या मूल्य चाहते हो? 1000 स्वर्ण मुद्राएं। अरे इतने में तो 100 दास मिल जाएंगे। 1000 स्वर्ण मुद्राओं में कौन खरीदेगा तुम्हें? तुम जो भी हो, मैं डोम सरदार हूँ। मुर्दों को जलाता हूँ, शमशान घाट पर अपनी जीविका चलाता हूँ। क्या मेरा दास बनना स्वीकार है तुम्हें? मुझे आपकी दासता स्वीकार है। हरिश्चंद्र का वचन पूरा हुआ, पर अभी तो हरिश्चंद्र को आग का दरिया पार करना था। रानी शैव्या आज दासी थी और राजा हरिश्चंद्र आज डोम। जलती लाशों के धुएं ने हरिश्चंद्र की आंखों के आंसू भी सुखा दिए थे। अपना सब कुछ खोकर मैंने ये पाया। शव को यहाँ ले आओ देवी। ये क्या हुआ मेरे रोहतास को? ये आपके पुण्यों का फल है राजन। पति खोया, पुत्र खोया और 2 दुहाई धर्म की। मैं कहती हूँ जहाँ धर्म है वहाँ विजय नहीं है। धिक्कार है विश्वामित्र, मेरे लाल लोहिताश। कर दो देवी, ताकि मैं तुम्हारे पुत्र को आग दे सकूं। वो आपका भी पुत्र है देवी। मैं डोम सरदार का दास हूँ। शमशान कर लिए बिना मैं किसी भी चिता को आग नहीं दे सकता। यही मेरे स्वामी की आज्ञा है। मैं स्वामी और सेवक के धर्म से बंधा हूँ। कर लिए बिना तुम्हारे पुत्र को जलाने की अनुमति नहीं दे सकता। हरिश्चंद्र, धन्य है तू। आज तो जीता, मैं हारा। धन्य है तेरा कुल, धन्य है तेरे आचार्य। आज मैं विश्वामित्र अपने समस्त तप का बल तुझे देता हूँ।
सच कहा है किसी ने, जो किसी आदर्श पर खड़े नहीं रहते वे हर आकर्षण पर गिरते हैं। इसलिए धर्म ही है वह जिस पर हमें अडिग रहना चाहिए, क्योंकि धार्यते इति धर्मः, धर्म ही है वह जो हमें धारण करता है। भारतीय जीवन दर्शन का दूसरा आधार स्तंभ अर्थ पुरुषार्थ। क्या है अर्थ पुरुषार्थ? क्या है अर्थ का महत्व व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में? देखिए सम्राट चंद्रगुप्त को महान दार्शनिक और अर्थशास्त्री आचार्य विष्णुगुप्त से अर्थ का मर्म समझते हुए। कौन है वो आचार्य जिसका मस्तक दोपहर के सूर्य के समान चमक रहा है? कौन है वो आचार्य जो जम्बू द्वीप के कण कण को अर्थ दे रहा है? कौन है वो आचार्य जिसकी शिखा अभी भी बंधन मुक्त काली नागिन की तरह कंधों पर लहरा रही? कौन है वो आचार्य? विदूषक, ये है वो आचार्य जिनके क्रोध के आगे दुष्ट थर थर कांपते हैं, जिनके संकल्प के आगे पर्वत राई राई हो जाते हैं। ये है वो जिन्होंने नंद वंश के विशाल वट वृक्ष को जड़ सहित उखाड़ फेंका। ये है वो जिन्होंने चंद्रगुप्त को मगध के राज सिंहासन पर स्थापित किया। ये है वो जिन्होंने शास्त्रों का सम्मान किया और शस्त्रों को बल दिया। ये है वो जिन्होंने दुष्टों का संहार किया। आओ विदूषक, ऐसे रचना करने वाले, ऐसे पालन करने वाले और ऐसे संहार करने वाले आचार्यों को हम प्रणाम करें। नीति शास्त्रामृते धीमान अर्थशास्त्र महोदधे समुद्रन्त्रे नमस्तस्मै विष्णुगुप्ताय वेदसे। महापंडित बुद्धिशाली श्री विष्णुगुप्त को हमारा नमस्कार, जिन्होंने अर्थशास्त्र रूपी महासमुद्र का मंथन कर नीति शास्त्र रूपी अमृत निकाला। सुनो सुनो सुनो, आचार्य विष्णुगुप्त के शिष्य सम्राट चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया है। आचार्य विष्णुगुप्त सम्राट चंद्रगुप्त के राज्याभिषेक होने तक मगध के महामंत्री होंगे। कितनी बार आचार्य से कहा है कि यहां महल में रहा करें, पर वे हैं कि मानते ही नहीं। हर बार मुझे उनसे मिलने उनकी कुटिया में जाना पड़ता है। मगध का सम्राट मैं हूं, पर जाना मुझे पड़ता है। सम्राट, आचार्य विष्णुगुप्त मगध में सबसे सामान्य व्यक्ति की तरह रहना चाहते हैं, ताकि प्रजा को महलों का भय ना लगे। मैं नहीं जानता आचार्य क्या चाहते हैं। सम्राट, आचार्य आपको याद कर रहे हैं। फिर एक और आदेश। सुखस्य मूलम धर्मः। सुख का मूल धर्म है। धर्मस्य मूलम अर्थः। धर्म का मूल अर्थ है। अर्थस्य मूलम राज्यम। अर्थ का मूल राज्य है। अमरवत अर्थ जातम अर्जयेत। स्वयं को अमर समझकर अर्थ का अर्जन करना चाहिए। नहीं धान्य समो अयम अर्थः। अन्न से बढ़कर दूसरा धन नहीं। न क्षुधा समः शत्रु। भूख से बढ़कर दूसरा शत्रु नहीं। प्रणाम आचार्य। सम्राट, आयुष्मान भव। कहो, कुछ कहना चाहते हो या कुछ पूछना चाहते हो? आचार्य, प्रथम आसन तो ग्रहण करें। शिष्टाचार में समय गंवाने का मेरे पास समय नहीं है सम्राट। आचार्य के पास मेरे लिए समय नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आचार्य किसकी चिंता में व्यस्त हैं। समाज की। मेरे लिए व्यक्ति नहीं, देश महान है। मेरी निष्ठा न चंद्रगुप्त में है न चंद्रगुप्त के साम्राज्य में। मेरी निष्ठा समाज के उत्कर्ष में है। मैं उसी के बारे में सोचता हूं चंद्रगुप्त। इसीलिए मैं कर का चिंतन करता हूं। इसीलिए मैं दान का चिंतन करता हूं। स्मरण रहे चंद्रगुप्त, समुद्र से जल भाप बनकर बादल बन जाता है, फिर वही बादल वर्षा की बूंदें बनकर जल जल में मिल नदियां बन सागर बन जाता है,
वही जल अर्थ है, कर वही अर्थ है जो राज्य का आधार है, और दान वही अर्थ है जो समाज का आधार है। ये समाज ही सागर है। यदि सागर का जल सागर में न मिले तो अर्थ अनर्थ है। इसीलिए राजा कर लेता है और समाज दान देता है। जिस मगध में प्रतिष्ठित श्रेष्ठी कर नहीं चुकाते, ऐसे मगध में एक ऐसा अपरिग्रही ब्राह्मण भी रहता है जो भिक्षा में मिले अन्न को भी सूर्यास्त से पहले बांट देता है ताकि वो किसी की भूख मिटा सके। बताओ चंद्रगुप्त, मैं किसका सम्मान करूं? कम से कम में जीने वाले उस आचार्य का, या कर न चुकाने वाले उन प्रतिष्ठित श्रेष्ठियों का? ऐसे साम्राज्य का सम्राट होने का क्या लाभ जहां मैं हर दिन एक कठपुतली की तरह नचाया जाऊं? कौन हूं मैं, सम्राट या आचार्य विष्णुगुप्त के इशारों पर नाचने वाला एक दास? नहीं बनना मुझे सम्राट, नहीं चाहिए मुझे ये साम्राज्य, नहीं होगा ये राज्याभिषेक। ये क्या सुन रहा हूं मैं चंद्रगुप्त? आपने ठीक ही सुना है आचार्य, नहीं बनना मुझे मगध का सम्राट। क्यों? जब से यहां आया हूं अपनी इच्छा से सांस तक नहीं ले सका हूं। आपने मुझे एक महान स्वप्न दिया था, चक्रवर्ती सम्राट का स्वप्न, एक महान साम्राज्य का स्वप्न, परंतु यहां आने के बाद पता चला कि आचार्य विष्णुगुप्त के लिए सम्राट एक वेतन लेने वाले नौकर से बढ़कर कुछ नहीं। तूने ठीक ही समझा है चंद्रगुप्त, मेरे लिए सम्राट समाज के नौकर से बढ़कर कुछ नहीं। तो रखें अपना साम्राज्य, नहीं बनना मुझे सम्राट यदि यही सुख है सम्राट होने का। चंद्रगुप्त, तुझे सुखी होना है? क्या सम्राटों को सुखी नहीं होना चाहिए? मूर्ख! जब तक तेरे साम्राज्य में एक भी व्यक्ति भूखा है तो क्या तू सुखी हो पाएगा? सुख शिक्षक और सम्राटों के भाग्य में नहीं होता। भूल गया तू चंद्रगुप्त, मैंने तुझे साम्राज्य देने का वचन दिया था, सुख देने का नहीं। भूल गया तू कि प्रजा के हित में ही राजा का हित है। भूल गया तू कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। सुख चाहता है तो पहले अपनी प्रजा को सुखी बना। तूने साम्राज्य अर्जित किया है, सुख अर्जित करने का मार्ग भी तेरे लिए खुला। चंद्रगुप्त, ये राष्ट्र तुम्हें सौंपा जाता है। तुम इसके संचालक, नियामक, उत्तरदायित्व के दृढ़ वाहन करता हो। ये राज्य तुम्हें कृषि के कल्याण, संपन्नता, प्रजा के पोषण के लिए दिया जाता है। अपने महान गुरु के महान शिष्य चंद्रगुप्त ने अर्थ का ऐसा पाठ पढ़ा कि अपने जीवन के अंत काल में 40 दिन तक अन्न ग्रहण नहीं किया। क्यों? क्योंकि अपने जीवन के अंत समय में चंद्रगुप्त के राज्य में भीषण अकाल के कारण लोगों के पास अन्न नहीं था। महान गुरु, महान शिष्य, महान आदर्श। अपने महान शिष्य के लिए महान गुरु ने कौटिल्य के नाम से अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। रसिकों, अर्थ और सुख जीवन की आवश्यकताएं हैं, किंतु गलत रास्तों से अर्जित अर्थ अनर्थ है। सही रास्तों से अर्जित अर्थ ही आपको सुख की ओर ले जाता है। इसीलिए 33वां प्रश्नोपनिषद में पहले शुद्ध बुद्धि और बाद में धन की कामना की। कारण स्पष्ट है, धर्म है तो अर्थ है, अधर्म है तो अनर्थ है। काम पुरुषार्थ भारतीय जीवन दर्शन का तीसरा आधार स्तंभ। काम जीवन का आवश्यक अंग है। काम का अर्थ सुख की अभिलाषा है। काम जीवन का पुरुषार्थ है। सुख की कामना, संतान की कामना,
परिवार की कामना गृहस्थाश्रम का आधार है। धर्मयुक्त काम जीवन की शक्ति है, धर्म व दिशा रहित काम पतन है। भारतीय जीवन दर्शन का चौथा और अंतिम लक्ष्य मोक्ष। क्या है यह मोक्ष जिसे पाना मनुष्य का मौलिक अधिकार और पुरुषार्थ है? देखिए अगले प्रकरण में कथा कोटिकर्ण की, कथा मोह से मोक्ष की। अपनी आत्मा के समस्त भिन्न नामों और रूपों को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित होना ही मुक्ति है। ये मैं कहां आ गया? इन कंगलों के पास चुराने के लिए सिवाय पुराने कपड़ों के होता ही क्या है? इससे पूछता हूं, शायद ये मेरी कोई मदद करे। नमस्कार मित्र। नमस्कार। मैं एक चोर हूं, सत्यवादी चोर। सत्यवादी चोर? हाँ, पकड़ा गया तो सच बोल देता हूं। क्या आप मुझे कोई ऐसा घर बता सकते हैं जहां मैं चोरी कर सकूं? फिर तो तुम्हें श्रेष्ठी कोटिकर्ण के यहां सेंध लगानी चाहिए। श्रेष्ठी कोटिकर्ण? कोई मोटा आसामी है? मोटा? अरे उसके कानों के कुंडलों की कीमत ही 1 करोड़ रुपए है, इसीलिए उसे कोटिकर्ण कहते हैं। धन्यवाद मित्र। अब अगली मुलाकात फिर कभी ना होगी। ये क्या सुन रहा हूं मैं? ये क्या सौदा कर रहे हैं श्रेष्ठी कोटिकर्ण? श्रेष्ठी, मैं ये घाट नहीं बेच सकता। मेरे बाप दादाओं ने इसे धर्म के नाम बनवाया था। किसी की भी नाव इस धर्म घाट पर लग सकती है। मल्ला, मुझे ये घाट चाहिए, मूल्य बताओ। सरकार, मैं इसे नहीं बेच सकता। जहां तक तुम्हारा घाट, उसे मैं चांदी के सिक्कों से पाट दूंगा। सरकार, ये घाट नहीं बिक सकता। मल्ला, जहां तक तुम्हारा घाट, उसे मैं सोने के सिक्कों से पाट दूंगा। मुंशी जी, घाट को अपने अधिकार में ले लो। है कोई याचक यहां तो मांग ले। है कोई याचक? याचक यहाँ है। बोलो याचक, क्या दूं तुम्हें? एक याचक को क्या दे सकते हो श्रेष्ठी? मांग कर तो देखो याचक। मेरा पेट तो पेड़ों की जड़ों से भी भर जाता है श्रेष्ठी, पर दे ही सकते हो तो मुझे अपना अहंकार दे दो। अहंकार कोई वस्तु नहीं है याचक जो तुम्हें दे दूं। कुछ और मांगो। सोना, चांदी, धन, वस्त्र, अन्न, कुछ भी। सोना चांदी साम्राज्य देना आसान है श्रेष्ठी, अहंकार देना मुश्किल। पहचान, खुद को पहचान। जो तू दिखता है वो तू है नहीं, जो तू है उसे देखना नहीं चाहता। पहचान, खुद को पहचान। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। दे सकते हो तो मुझे अपना अहंकार दे दो। अहंकार? चांदी सोना साम्राज्य देना आसान है, तो क्या छोड़ना सबसे मुश्किल काम है? उस याचक के लिए मेरे साम्राज्य का कोई मूल्य नहीं। क्यों उस मांगने वाले के सामने मैं आज अपने आप को छोटा महसूस कर रहा हूं? जो मैं दिखाई देता हूं वो मैं हूं नहीं, तो फिर मैं कौन हूं मैं? इस प्रश्न का उत्तर मैं ढूंढ कर रहा हूं। और अथाह संपत्ति के स्वामी कोटिकर्ण ने अपनी सारी संपत्ति दान कर सब कुछ छोड़ने की राह पकड़ ली। आपको मैंने पहले भी कहीं देखा है। देखा होगा, वर्षों पहले मैं इसी नगर में रहता था। श्रेष्ठी कोटिकर्ण? अब ये शरीर उस नाम से अलग है। अब मैं उस शरीर को नहीं पहचानता। और भिक्षु कोटिकर्ण के नगर में आने की सूचना जंगल की आग की तरफ फैल गई। लोग सैकड़ों की संख्या में भिक्षु कोटिकर्ण को देखने उमड़ने लगे। धर्म, अर्थ,
और काम के बाद मोक्ष तुम्हारा अधिकार है। इसी जीवन का परम पुरुषार्थ मोक्ष है। इसीलिए मैं कहता हूं, जो तुम दिखाई पड़ते हो वो तुम हो नहीं। अपने असली स्वरूप को पहचानना ही मोक्ष है। जैसे ही तुम अपने वास्तविक स्वरूप को जानने लगते हो, तुम निराकार, निर्विकार, अनादि, अनंत और अमृत हो जाते हो। विडंबना है, जो स्वयं सत्य चित्त आनंद है, वो बाहर सुख ढूंढ रहा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। कोटि कर्ण की अपने अहंकार, अपने इंद्रियों की दासता से मुक्ति, क्या यही मोक्ष है? भारतीय जीवन की व्यवस्था है 4 आश्रम। क्या है यह आश्रम व्यवस्था? देखिए, 4 आश्रमों में पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, कथा ब्रह्मचर्य आश्रम के गौरव सत्यकाम की। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हमें जड़ से चेतन की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो। ये आकाश में टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो सत्यकाम? क्या सोच रहे हो बेटा? काका सोच रहा था, इस आकाश का अंत कहाँ है? अरे ये क्या सोचने लग गए बच्चा? कौन है वो जो पंखियों को उड़ाता है? पंखी हैं, उड़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे? आग में ताप क्यों है? हमें इन सब बातों से क्या काम? बूंद बूंद से जल बनता है, तो पशु पशु से, मनुष्य मनुष्य से क्या बनता है? मनुष्य कहाँ से आता है? मनुष्य कहाँ जाता है? एक बात बताओ काका, हम काहे नहीं पढ़ सकते? हमें कोई क्यों नहीं पढ़ाता? अरे तुम्हें पोथी पढ़कर करना क्या है? पेट ही तो भरना है। हम तुम्हें नाव खेना सिखा देंगे, खूब नाव चलाना और पेट भर लेना। अगर पढ़ना सिर्फ पेट भरने के लिए होता, तो फिर पढ़ने वाले ब्रह्मचारी भिक्षा क्यों मांगते हैं? ये तो हमने सोचा ही नहीं। दिन भर धूप में इधर उधर घूमता रहता है। शरीर कैसे तप रहा है? माँ, क्या मैं आग हूँ जो तप रहा हूँ? फिर वही उल्टी सीधी बातें। हाँ रे, तू आग भी है। आग तो सूरज में भी है, तो क्या मैं सूरज हूँ? तू मेरा सूरज भी है और मेरा चंदा भी। अब सो जा। तो लोरी सुनाना। शुद्धो सिरेता तनते स्थिराम, कृतं च ये कल्पनया ध्वनैव। हे पुत्र, तुम शुद्ध हो, तुम पवित्र हो। तुम्हारा कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, पर जो ये नाम और रूप है वो आभास मात्र है। 5 तत्वों से बना ये शरीर तुम नहीं हो, फिर तुम किस लिए रो रहे हो? आज मेरा सत्यकाम चुप क्यों है? क्या तुम नहीं चाहती कि मैं चुप रहूं? क्या बात है? कौन चाहता है कि तुम चुप रहो? सभी। काका, घाट पर लोग, मेरे संगी साथी, दुकानदार, मुसाफिर, अरे जिससे सवाल करो वो चुप रहने को कहता है। तो तू उनसे सवाल करना बंद कर दे। क्या मेरे न पूछने से सवाल खत्म हो जाएंगे? मुझसे पूछ, क्या पूछना है? दूसरे ब्रह्मचारियों की तरह मैं क्यों नहीं पढ़ सकता? क्यों मेरा कोई आचार्य नहीं है? क्यों मुझे लोग नहीं पढ़ाना चाहते? आज तू फिर किसी आचार्य के पास गया था? हाँ, और फिर एक आचार्य ने मुझे पढ़ाने से मना कर दिया, क्योंकि मैं ब्राह्मण नहीं,
क्षत्रिय नहीं, एक दासी का पुत्र हूँ। उत्तर नहीं है ना? ऐसा नहीं कहते सत्यकाम। अरे विद्या वो नहीं है जो ब्राह्मण पढ़ाते हैं, विद्या तो वो है जो तुझे मुक्त कराए, तुझे बंधनों से छुड़ाए। मैं तो प्रकृति के कण कण में एक ब्राह्मण देखती हूँ, तू उसे ढूंढ, वही तेरा आचार्य है। सत्यकाम, मुझ पर विश्वास है तो मेरी बात पर यकीन कर। जब एक शिष्य सवालों के साथ खड़ा होता है तो एक आचार्य भी किसी न किसी रूप में जवाब देने के लिए आ ही जाता है। काका, हाँ बेटा, ये घाट पे इतनी हलचल क्यों हो रही है? सुना है कोई बड़े आचार्य हरिद्रुमत गौतम गंगा पार से आ रहे हैं। शायद उन्हीं लिवाने महाराज आए होंगे। खबरदार जो तू उनके आसपास भी फटका। आचार्य, मैं सत्यकाम जाबाला का पुत्र हूँ। मेरा नाम सत्यकाम जाबाल है। जबाला का पुत्र? चल दूर हो जा यहाँ से। क्यों आचार्य के मार्ग को अपवित्र कर रहा है? सत्यकाम, जा यज्ञ की संविधा ले आ। आज से तू मेरा शिष्य और मैं तेरा आचार्य। आज से तू जबाला का पुत्र हरिद्रुमत गौतम के शिष्य के रूप में जाना जाएगा। जा, जल्दी जा। तेरे उपनयन संस्कार के लिए यज्ञ की संविधा ले आ। ये कैसे संभव है? एक दासी के पुत्र का उपनयन संस्कार संभव नहीं है। सत्यकाम का उपनयन संस्कार आचार्यों के बीच बहस और विरोध का मुद्दा बन गया। असमंजस में पड़े विद्वान एक साथ अपनी बात लेकर राजा पालक के पास पहुँचे। हे राजन, धर्म और अधर्म का निर्णय शास्त्र करते हैं, पर उनका पालन आप करवाते हैं। इसीलिए राजा राजदंड धारण करते हैं। आचार्य गौतम ब्रह्म ज्ञानी है, वो ब्रह्म को जानते हैं, फिर उन्होंने धर्म के विरुद्ध ये निर्णय कैसे ले लिया? हे राजा पालक, इस प्रश्न से हम सभी व्यथित हैं। इसीलिए आपसे विनती है कि आचार्य गौतम से यह प्रश्न आप ही करें, क्योंकि आचार्य गौतम से प्रश्न करने के लिए हम अभी योग्य नहीं हुए हैं। सदा सुखी रहो। आपकी सदैव प्रतीक्षा रहेगी आचार्य। आचार्य, एक प्रश्न उमड़ रहा है मन में। राजन, जीवन की निरंतरता ही प्रश्न करने में है। सत्य पर पड़े आवरण को हटाने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। प्रश्न करो। आचार्य, क्या उसका उपनयन संस्कार संभव है? क्या उसे ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है? सत्यकाम की माता ने सिर्फ सत्य को धारण किया और सिर्फ सत्य को कहा। जो सत्य कह सके, सत्य सुन सके, सत्य धारण कर सके, श्रेष्ठ ज्ञान का अधिकारी भी वही हो सकता है। जिस क्षण सत्यकाम ने अपने जीवन के सत्य को कहा, उसी क्षण मैंने उसे उस क्षण के लिए ब्रह्म के साथ एक होते हुए देखा। प्रजापालक ज्ञान के लिए जाति, कुल, गोत्र, नाम, रूप नहीं, ज्ञान की अभिलाषा ही एकमात्र शर्त होनी चाहिए। क्षमा आचार्य, आपका अपराधी हूं मैं। जाति नीति कुल गोत्र दूरगम नाम रूप गुण दोष वर्जितम देश काल विषयातिवर्तीय ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि। वो जिसकी कोई जाति, कोई कुल, कोई परिवार नहीं, वो जिसका कोई नाम और रूप नहीं, वो जिसमें कोई गुण और दोष नहीं, वो जो ब्रह्मांड, समय और इंद्रियों से परे है, वो ब्रह्म तुम ही हो। आश्रम व्यवस्था का दूसरा आश्रम यानी गृहस्थाश्रम।
आधुनिक मनुष्य जीवन का शिल्प जानता है, जीवन का विज्ञान जानता है, परंतु प्राचीन मनुष्य जीवन की कला जानता था। इसलिए उसने जीवन को 4 हिस्सों यानी 4 आश्रमों में बांटा था। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ तथा चौथा सन्यास। पहले आश्रम में शिक्षा व अनुशासन, दूसरे में धर्म संगत सुखों का अर्जन, तीसरे यानी वानप्रस्थ में दूसरे आश्रम की आसक्ति से स्वयं को मुक्त कर, चौथे यानी अंतिम आश्रम सन्यास के लिए स्वयं को तैयार करना। वानप्रस्थ बुढ़ापे का दंड नहीं, बुढ़ापे की लाठी है। सूत्रधार ठहरो, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि गृहस्थ आश्रम के बाद मुझे वन में चले जाना चाहिए? जो लोग संसार छोड़ नहीं सकते वे वन में जाकर भी अपना संसार बसा लेंगे, और जो लोग संसार छोड़ चुके होते हैं वे घर में रहकर भी वन में ही रह रहे होते हैं। समय के साथ आश्रमों का रूप बदलता है, भाव नहीं। रसिकों, ध्यान से सोचें तो वास्तव में वानप्रस्थ ही हमें सही रूपों में संसार से जोड़ता है। गृहस्थ में रचा बसा मैं और मेरे परिवार से बाहर कब आता है? यह संसार भी उसका कुटुंब है, यह सोचने का अवसर भी उसे वानप्रस्थ ही देता है। आत्मोद्धाराय जगत हिताय च, यानी स्वयं का उत्कर्ष और संसार का कल्याण ही वानप्रस्थ का उद्देश्य है। किसी ने सही कहा है कि जब तक मुझे यह समझ में आया कि मेरा पिता सही था, तब तक मुझे गलत सिद्ध करने वाली मेरी अगली पीढ़ी बड़ी हो चुकी थी। प्रथमेनाजिता विद्या, द्वितीयेनाजितं धनम्, तृतीयेनाजिता कीर्तिः, चतुर्थे किं करिष्यति। जिन्होंने प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य में विद्या का अर्जन नहीं किया, द्वितीय आश्रम गृहस्थ में धन का अर्जन नहीं किया, तीसरे आश्रम वानप्रस्थ में कीर्ति का अर्जन नहीं किया, वे चौथे आश्रम सन्यास में क्या कर पाएंगे? आश्रम व्यवस्था का अंतिम आश्रम यानी सन्यास आश्रम। क्या सन्यास जीवन से पलायन है? न कर्मणा न प्रजया धनेन, त्यागेनैके अमृतत्वमानशु, प्रेरणाकं निहितं गुहाया, विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति। न कर्म से, न संतान से, न संपदा से, बल्कि त्याग से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है। त्याग से ही स्वर्ग से महान चित्त की गुहा में बैठे उस स्वयं प्रकाशमान की प्राप्ति होती है। सन्यास आश्रम व्यवस्था का मोक्ष पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए चौथा आश्रम। सर्वस्व त्याग कर आत्मा के उत्कर्ष और समाज के उत्कर्ष के लिए जीना, यही सन्यास आश्रम का उद्देश्य है। भारतीय इतिहास के पन्ने ऐसे असाधारण सन्यासियों के चरित्र से भरे पड़े हैं। ऐसे ही सन्यासियों ने अनुपम साहित्य की रचना की, इतिहास की रचना की, साम्राज्यों की रचना की। आओ समाज के लिए अपना सर्वस्व दे देने वाले ऐसे सन्यासियों को हम प्रणाम करें। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था, संन्यास योगा यदयत् शुद्ध सत्वा, ते ब्रह्मलोकेषु परान्तिकाले, परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे। वे जो शुद्ध चित्त से त्याग के मार्ग में प्रयत्नशील हैं, वे ही उस ज्ञान को समझ पाते हैं जो उपनिषदों में निहित है, और अंत में ब्रह्म को प्राप्त कर सभी बंधनों से मुक्त हो अमृत को प्राप्त होते हैं। मुखमासी बाहुरा
शूद्रः पद्भ्यां शूद्रो अजायत। वेद वांग्मय में पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त आत्म तत्व की कल्पना आदि पुरुष यानी विराट पुरुष के रूप में हुई, जिसमें मुख को ब्राह्मण, भुजाओं को क्षत्रिय, जांघों को वैश्य और चरणों को शूद्र कहा गया। इसीलिए उस समय की सामाजिक व्यवस्था में शूद्रों को हीन माना गया, जबकि वास्तव में वेदों का ये अभिप्राय नहीं था। वर्ण का शाब्दिक अर्थ है रंग। शास्त्रों में त्रिगुण यानी सत्व, रजो और तमो नाम की मनः स्थितियों या मनोदशा को वर्ण यानी रंगों के माध्यम से भी दर्शाया जाता है। इसलिए सत्व को सफेद, रजस को लाल और तमस को कृष्ण यानी काले रंग से अभिव्यक्त किया जाता है। जब मनुष्य अपने अस्तित्व के लिए कभी जंगली पशुओं से और कभी दूसरे समूहों के आक्रमण से लड़ रहा था, ऐसी व्यवस्था में जो सत्व गुण प्रधान थे, जिन्होंने समाज के बौद्धिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का जिम्मा उठाया, वे ब्राह्मण कहलाए। जो रजोगुण प्रधान थे, योद्धा थे, वीर थे, युद्ध में कुशल और निर्भीक थे, जिन्होंने अपने समाज, अपने समुदाय की रक्षा की जिम्मेदारी उठाई, वे क्षत्रिय कहलाए। जो रजो और तमोगुण प्रधान थे, जिन्होंने समाज के पालन पोषण, भोजन और रोजमर्रा की जरूरतों की जिम्मेदारी ली, वे वैश्य कहलाए। और जो तमोगुण प्रधान थे, जिन्होंने अपने समाज, अपने समुदाय की सेवा की जिम्मेदारी उठाई, वे शूद्र कहलाए। वर्ण की इस व्यवस्था का अपने प्राचीन रूप में जन्म से कोई संबंध नहीं था। कृष्ण ने गीता में कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। वर्ण व्यवस्था में कोई महान और कोई हीन नहीं। समाज के कल्याण के लिए सभी वर्णों की समान रूप से आवश्यकता है। केनेशितं पतति प्रेषितं मनः, केन प्राण प्रथम प्रीतियुक्तः, केनेशितां वाचमिमां वदन्ति, चक्षुश्रोत्रं कौ देवो युनक्ति। किसकी प्रेरणा और निर्देश से मन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है? किसके आदेश से प्राण सक्रिय होता है? लोग जो वाणी बोलते हैं, वह किसकी इच्छा से होता है? वह कौन है जो आंख और कान को देखने और सुनने को प्रेरित करता है? कौन है वह जो कान का कान, मन का मन, वाणी की वाणी, प्राण का प्राण और आंख की आंख है? कौन है वह जहां आंख नहीं जा सकती, वाणी और मन भी नहीं जा सकते? किसकी चेतना से हमारी इंद्रियां सक्रिय होती हैं? किसकी चेतना से हम जीते हैं? किसकी चेतना से हम सांस लेते हैं? किसके न होने से हमारा अस्तित्व भी न होगा? उसे जानना ही ब्रह्म को प्राप्त करना है। उस ब्रह्म को जानना तो देवताओं के लिए भी कठिन था। देवताओं के लिए भी? क्यों? विश्वास नहीं हो रहा है ना? तो चलो किनोपनिषद से मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूं। एक बार देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की। गाता है सारा स्वर्ग लोक, गाती है सारी धरा आज, गाता है सारा स्वर्ग लोक, गाती है सारी धरा आज। जय जय सुरेंद्र जय देवराज, जय जय सुरेंद्र जय देवराज, जय जय सुरेंद्र जय देवराज, जय जय सुरेंद्र जय देवराज। तेरे बल विक्रम से पल में दानव नल चकनाचूर हुए, हर युद्ध में हमको विजय मिली, सुर हर मुनि भय से दूर हुए। जय जय सुरेंद्र जय देवराज, जय जय सुरेंद्र जय देवराज। जब डोल रही थी यह धरती, तूने उसको आधार दिया, कट गए हैं पंख पहाड़ों के, पौरुष को ऐसी धार दिया। जय
इंद्र सदन में तुम कैसे घुस आए अजनबी? मैं तो यहाँ पहले भी था, और जब तुम नहीं रहोगे तब भी रहूंगा। मैंने तो तुमको पहले कभी नहीं देखा। जो तुम मुझे नहीं पहचानो तो इसमें दोष तुम्हारा है। मेरे पास तुम्हें पहचानने का न समय है न इच्छा। चलो बाहर निकलो यहाँ से। जैसे ही तुम मुझे जान लोगे मैं स्वयं यहाँ से ओझल हो जाऊंगा। पर पहले देवताओं से ये पूछ तो लूं कि वे किसकी विजय का उत्सव मना रहे हैं। यदि विजय देवताओं की नहीं तो फिर किसकी? ये देवताओं का ही पराक्रम है कि आज असुर परास्त हैं। क्या विजय के लिए पराक्रम ही पर्याप्त होता है, या कोई और भी कारण है जो हमें दिखाई नहीं देता? देवराज इंद्र की जय, देवराज इंद्र की जय। देवों, बाहर एक यक्ष सा दिखाई देने वाला अद्भुत व्यक्ति खड़ा है और वह पूछ रहा है कि आया देवों की विजय है? तो यह विजय और किसकी हो सकती है? ये विजय हमारी है, ये हमारी ही महिमा है और ये हमारा ही पराक्रम है। अग्नि, तुम ही जाओ और देख कर आओ वो कौन है और उसे उसके प्रश्नों का उत्तर दो। ठीक है। कहाँ हो तुम? मैं कहाँ नहीं हूँ। बहुत साहसी दिखाई देते हो। तुम हो कौन? मुझे जो जानता नहीं वो जानता है, जो जानता है वो जानता नहीं। जो स्वयं को ज्ञानी मानते हैं मैं उनके समझ में नहीं आता, और जो स्वयं को ज्ञानी नहीं मानते मैं उनके समझ में आ जाता हूं। मैंने अपना परिचय तो दे दिया, अब तुम अपना परिचय दो। मैं अग्नि हूं, जात वेद हूं मैं। बस इतना ही परिचय? पृथ्वी पर जो कुछ भी है उसे मैं जलाता हूं। चाहूं तो सारी पृथ्वी को जलाकर राख कर सकता हूं। जलाकर दिखाओ इसे। वह जो अद्भुत है उसे मैं नहीं जान सका। वायु, तुम जाओ और जाकर देखो वो अद्भुत कौन है। कौन हो तुम? जिससे मन का चिंतन नहीं होता, जिसके द्वारा मन का चिंतन होता है। मैंने अपना परिचय तो दे दिया, अब तुम अपना परिचय दो। मैं वायु हूं, मात्र ईश्वर हूं मैं। बस इतना ही? यहाँ पृथ्वी पर जो कुछ भी है उसे मैं ले जाता हूं। मेरे वेग से पहाड़ भी तिनके की तरह उड़ जाते हैं। उड़ाकर दिखाओ इसे। मघवन, वह जो अद्भुत है मैं उसे जान नहीं सका। मघवन, अब तुम ही पहचानो कि यह अद्भुत व्यक्ति कौन है। किसे ढूंढ रहे हो मघवन? देवी, यहाँ कोई यक्ष सा खड़ा था, क्या आपने उसे देखा? मैं उसे जानती हूँ मघवन। कौन था वह? इंद्र। किसकी इच्छा और प्रेरणा से मन चलता है, किसकी इच्छा से प्राण हलचल करता है, किसकी इच्छा से इस वाणी में शक्ति है, कौन आंखों और कानों को उनके उनके कामों की प्रेरणा देता है, कौन है वो जिसके कारण आग जलती है, किसके कारण वायु बहता है। कौन है वह जो आग में आग और वायु में प्रवाह है? इंद्र, वो अद्भुत ब्रह्म है जो बिजली की भांति आंखों की पलक झपकने के समान चमका और फिर लुप्त हो गया, ताकि तुम ये जान सको कि उसकी इच्छा के बिना ना तुम तिनके को जला सकते हो ना तिनके को उड़ा सकते हो। तुम्हारी विजय का कारण तुम नहीं, वो ब्रह्म था। वो यक्ष ब्रह्म का अधिदैवत रूप था। अपनी विजय के अहंकार में चूर देवों को अपनी विजय के कारण का ज्ञान या बोध कराने आए ब्रह्म का यह चित स्वरूप क्या है? इंद्र, आत्मा सभी अवस्थाओं का साक्षी है। जो है और जो नहीं है उसका भी उसे ज्ञान है। न सूर्यो भाति न चंद्र तारकम्, नेमा विद्युतो भान्ति
भान्तमनुभाति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। वहां न सूर्य प्रकाशित होता है न चांद तारे, ये विद्युत भी वहां चमकती नहीं, तो फिर ये अग्नि कहां से चमकेगी? उस प्रकाशमान के प्रकाशित होने से ही सब कुछ प्रकाशित होता है, उसकी प्रभा से ही यह सब प्रकाशित होता है। मनुष्य की सदैव और निरंतर आनंद में डूबे रहने की कामना का रहस्य क्या है? देखिए आत्मा का आनंद स्वरूप। सुनो सुनो सुनो, उत्तम नगर के सभी निवासियों सुनो, उत्तम प्रदेश के महाराज दुखी हैं क्योंकि वो सुखी नहीं हैं। महाराज को सुख देने वाली वस्तुओं का अभाव नहीं है, पर महाराज को सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। महाराज के पास कीर्ति है, यश है, धन है, पुत्र पुत्रियां हैं, नौकर चाकर हैं, पर सुख का भाव अचानक नदारद है। जो कोई भी उन्हें सुखी होने का मार्ग बताएगा वो अपार धन और यश पाएगा। सुनो सुनो सुनो, सुनो सुनो सुनो। पूरे राज्य में यही शोर है कि महाराज सुखी नहीं है। सूत्रधार ये कैसे हो सकता है? जिसके पास सब है उसके पास सुख नहीं है। यही तो जीवन का रहस्य है। यदि सुख वस्तुओं से होता तो महाराज दुखी क्यों होते? यदि सुख खरीदा जा सकता तो वो दुकानों में भी बिकता। तो क्या फिर किसी ने महाराज को सुखी होने का मार्ग बताया? महाराज की घोषणा सुनकर एक गरीब ब्राह्मण महाराज के पास पहुंचा। एक उपाय है महाराज। क्या? महाराज, किसी ऐसे आदमी की कमीज पहने जो सुखी हो। क्या हमारे मंत्री सुखी नहीं है? नहीं महाराज, नहीं महाराज। क्यों सुखी नहीं है हमारे मंत्री? जिन्हें राजकोप का भय हो, राज सुख छिन जाने का डर रहे, वे कैसे सुखी रह सकते हैं महाराज? क्या तुम सुखी नहीं हो? कुछ पाने की इच्छा रखने वाला सुखी कैसे हो सकता है? पर मेरे राज्य में सुखी लोगों की कमी थोड़ी है। एक सुखी आदमी को कहीं सिपाही कहीं मंत्री ढूंढ रहे थे। एक दिन सुखी आदमी को ढूंढते ढूंढते राजा के सिपाही एक गांव पहुंचे। धूप और प्यास से उनका बुरा हाल था। सुखी आदमी की तलाश में राजा ने हमें दुखी कर दिया है। समझ में नहीं आता, क्या पूरा संसार ही दुखी है? कैसे हो भाई? सुखी हूँ। क्या कहा तुमने? सुखी हूँ। अरे सुना तुमने, हमें सुखी आदमी मिल गया। क्या तुम सुखी हो? एक ही बात कितनी बार कहूँ? हाँ मैं सुखी हूँ। लेकिन तुम्हारी कमीज कहाँ है? कमीज? क्या तुमने राजा की घोषणा नहीं सुनी? राजा को सुखी आदमी की कमीज चाहिए। पर मेरे पास तो कमीज नहीं है। क्या तुम्हारे पास कमीज भी नहीं है? फिर तुम सुखी कैसे हुए? मेरा सुख कमीज में नहीं है, मैं ही सुख हूँ। और गाड़ीवान से मिलने राजा अपने मंत्री हजूरियों दासों के साथ गाड़ीवान भूरा के गांव पहुंचा। भूरा, अंदाता तुमसे मिलने आए हैं। भूरा, कहिए। तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। हाथी, घोड़े, दास दासियां, जो चाहे मांग लो, पर मुझे सुखी होने का रहस्य बता दो। पूछ, क्या जानना चाहता है? यह कैसा रहस्य है कि जिसके पास सैकड़ों कमीजें हैं वह सुखी नहीं है, और जिसके पास कोई कमीज नहीं वह सुखी है? राजे, सुख का कारण कमीज नहीं, आत्मा है। जो यह जान लेता है कि सुख का कारण भीतर है, उसे सुखी होने के लिए बाहरी वस्तुओं की जरूरत नहीं पड़ती। पर मन तो हमेशा सुख के लिए बाहरी वस्तुओं के पीछे भागता रहता है। इसीलिए राजे, जो अपने आनंद स्वरूप आत्मा को जान लेता है वह वस्तुओं के पीछे भागना बंद कर देता है। मैं समझा नहीं। राजे, आनंद आत्मा का स्वरूप है। आत्मा अनंत है, इसलिए आनंद भी अनंत है। आत्मा के स्वरूप के कारण व्यक्ति स्वयं से हर क्षण प्रेम करता है। क्या कभी सोचा है कि व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, बीमार हो जाता है, इंद्रियां साथ छोड़ रही होती हैं, मौत द्वार खटखटा रही होती है, फिर भी आदमी जीना चाहता है? क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति स्वयं से हर क्षण हर समय प्रेम करता है। यदि दुख स्वयं का स्वरूप होता तो क्या मनुष्य कभी स्वयं से इतना प्रेम करता? इतना है मनुष्य का स्वयं के प्रति प्रेम कि वह अपने अस्तित्व को भी समाप्त कर देना चाहता है। सुख भीतर है तो वह
मनुष्य बाहर संसार के पीछे भागता क्यों है? क्योंकि वह स्वयं से प्रेम करता है। मनुष्य जिसकी भी अभिलाषा करता है, चाहे वह धन हो या वैभव, पत्नी, पति या पुत्र हो, वे सिर्फ उपकरण हैं जिनकी अभिलाषा मनुष्य स्वयं के सुख के लिए करता है। मनुष्य अपनी प्रियतम वस्तु या संबंधी को भी छोड़ देता है यदि वह वस्तु या वे संबंध दुख का कारण हो जाए। इसलिए मनुष्य सबसे अधिक स्वयं से प्रेम करता है, स्वयं के लिए इतना प्रेम कि या तो सारा संसार या संसार नहीं। स्वयं के प्रति इतना प्रेम ही आत्मा के सुख स्वरूप का प्रमाण है। इसलिए राजे, संबंधों का और वस्तुओं का सुख स्थायी नहीं होता, परंतु आत्मा का आनंद स्थायी और अनंत होता है। बुरा व राजा में आनंद पर लंबी चर्चा हुई, जिसे वेदांत में आनंद मीमांसा कहते हैं। सात्विक आनंद, राजसिक आनंद, तामसिक आनंद से लेकर अलग अलग प्राणियों और अवस्थाओं में आनंद की अनुभूति और उसके कारणों की बुरा ने मीमांसा की। पर अंत में राजा ने वह प्रश्न किया जो इस समय हम सबके मन में है। आर्य, यदि मैं ही आत्मा और आत्मा का आनंद स्थान, समय, जन्म, शरीर, मन, बुद्धि और बाहर की किसी भी वस्तु से स्वतंत्र होता है, तो मैं अनंत, असीमित और पूर्ण आनंद का अनुभव क्यों नहीं कर पाता? राजे, यदि तुम अपनी आंखें बंद करोगे तो अंधेरा ही दिखाई देगा। जब तक तुम शरीर, मन, बुद्धि, संसार, वस्तुएं, रस, भाव और विचारों की ओर ही देखोगे, तब तक तुम उस अनंत, असीमित और पूर्ण का अनुभव नहीं कर सकोगे। इसमें गलती आत्मा की नहीं, हमारे दृष्टिकोण की है। इसलिए राजे, यदि सुख चाहते हो तो बाहर नहीं, भीतर देखो। तो सूत्रधार, क्या इसका ये अर्थ हुआ कि सुख की कामना ही आत्मा के आनंद स्वरूप का कारण है? तुमने ठीक समझा नटी। इसीलिए पूरा जीवन हम सुख की तलाश में रहते हैं। आप जो होते हैं, पूरा जीवन उसी की ही खोज करते हैं। हम आनंद है, इसीलिए हम अनंत सुख की अभिलाषा रखते हैं। इस सत्य को ना जानना ही दुख का कारण है। इसीलिए नटी, बाहर नहीं, भीतर देखो। बधाई हो महाराज, बधाई हो। आज आप सुखी दिखाई दे रहे हैं। उत्तरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव यात्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मनः। विवेक युक्त मन के द्वारा संसार में डूबे हुए अपनी आत्मा का उद्धार करें, उसमें अपने को डुबाएं नहीं, क्योंकि आप ही अपने बंधु हैं और आप ही अपने शत्रु। सुनो सुनो सुनो, सभी को सावधान किया जाता है कि मार्ग डाकू रत्नाकर के भय से मुक्त नहीं है। सुनो सुनो सुनो। कल्याणमस्तु। देवर्षि, आज यात्रा स्थगित कर सकें तो अच्छा रहेगा। आज ही सूचना मिली है कि डाकू रत्नाकर और उसके साथियों ने राज्य के सैनिकों की हत्या कर दी। ऋषियों को कैसा भय आचार्य? कल सुबह तक वशिष्ठ ऋषि के आश्रम ना पहुंचा तो उन्हें मेरी प्रतीक्षा का कष्ट होगा। अब देवर्षि नारद अकेले ही उस मार्ग पर चल दिए जहां रत्नाकर उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। रात हो चुकी थी। हरि हरि। न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि आज मुझे कोई अमूल्य धन मिलने वाला है। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो क्या तुम्हें मुझसे भय नहीं लग रहा ब्राह्मण? मैं रत्नाकर हूँ। मैं नारद हूँ रत्नाकर, तुम्हारा अतिथि, और मैं निर्भय हूँ। क्या तुम निर्भय हो? हाँ, मैं निर्भय हूँ। मुझे न प्राणों का भय है, न असफलता का, न कल का, न कलंक का। तो फिर यहाँ वन में छिपकर क्यों रहते हो? क्या राजा से डरते हो? नहीं। प्रजा से डरते हो? नहीं। उत्तर मैं देता हूँ। पाप करते हो और पाप से डरते हो। क्या था वो पाप जिससे तुम डरते हो? 6
इतना मत उकसाओ कि मैं तुम्हारी हत्या कर दूं। नारद, इतना तो मैं जान ही चुका हूं कि पाप और पुण्य की परिभाषा हमेशा ताकतवर तय करते हैं और उसे कमजोरों पर थोपते हैं। मैं सैनिक था, दुष्ट और निर्दयी सौदागरों की भी रक्षा की। वो पाप नहीं था? युद्ध में हारे हुए लोगों के साथ पशुता का व्यवहार करने वाले सैनिकों की हत्या क्या की? मैं पापी हो गया। दूसरों का पाप अपने पाप को सही नहीं ठहरा सकता रत्नाकर। मैं पापी नहीं हूँ। कौन निर्णय करेगा? वो जो इस यात्रा में तुम्हारे साथ हैं या नहीं है। तो जो तुम्हारे साथ हैं उन्हीं को निर्णायक बनाते हैं। जाओ, अपनी पत्नी से, अपने पुत्र से, अपने पिता से, अपने निकट संबंधियों से पूछ कर आओ, जो तुम कर रहे हो क्या वो पाप नहीं है? और क्या वो सब इस पाप में तुम्हारे साथ हैं, इस पाप के भागीदार हैं? सरदार, ये ब्राह्मण बहुत बोलता है, इसे मार दे। नहीं, इसे तो मैं अपने हाथों से मारूंगा, परंतु पहले इसके प्रश्नों के उत्तर तो दे दूं। मेरे आने तक इसे बांध कर रखो। रत्नाकर, बेटा आज बहुत जल्दी आ गए तुम। कोई मोटा आसामी हाथ लगाए क्या? क्या बात है स्वामी, आज आप प्रसन्न दिखाई नहीं दे रहे? मैं जो कर रहा हूँ क्या वो पाप है? क्या तुम मेरे पाप में भागीदार हो? ये तो क्या पूछ रहा है? क्या तुम मेरे पाप में भागीदार हो? नहीं स्वामी, मैंने आपके सुख में दुख में साथ देने की कसम खाई है, आपके पाप में भागीदार होने की नहीं। पिता, आप? बेटा, ये तो तेरी कमाई है, इसे मैं कैसे बांट सकता हूँ? तुम्हारे साथ ही मुझे अकेला छोड़ जा चुके हैं रत्नाकर। क्षमा देवर्षि, क्षमा। अब तो मैं भी अकेला ही हूँ। नहीं रत्नाकर, तुम ही अपने मित्र और तुम ही अपने शत्रु हो। तुम्हारे पुराने संसार की रचना भी तुम ही ने की थी, तुम्हारे नए संसार की रचना भी तुम ही करोगे। इसलिए उठो और अपने पुरुषार्थ से अपना भविष्य लिखो। राम राम। तुम्हारा पथ शुभ हो। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतोऽस्मि। इस कहानी के इस डाकू ने अपने संसार को छोड़ फिर एक नए संसार की रचना की, जिसे हम रामायण के नाम से जानते हैं। इतिहास कहता है कि अतीत का डाकू रत्नाकर ही भविष्य में राम कथा का रचयिता वाल्मीकि बना। ठीक कहा था देवर्षि नारद ने, असीम संभावनाओं का स्वामी मनुष्य काश खुद को पहचान पाता। संगच्छाद्वं संवदात्वं संवो मना सिजानता संगच्छाद्वं संवदात्वं संवो मना सिजानता समानो मंत्र समीति समानी समान मनसः चित्ता मेषाम् संगच्छाद्वं संवदात्वं संवो मना सिजानता सिजानता सिजानता। A wide round of applause for all the participants who make this event a memorable one. Finally, I would like to thank all of you present here for making your valuable time to be with us today and helping us make this event a grand success. Now, I would like to request Pujya Swamiji to say a few words about this program.
थैंक यू बेटा। પહેલા સ્વાતંત્ર્ય દિવસ નિમિત્તે આપ સૌને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ। બીજું કે આ સંસ્થા માત્ર ને માત્ર ટેક્સ્ટ બુક ઉપર જ નહીં પણ એનીથી કંઈક હટીને કંઈક અલગ કરવાના જે મૂળ સાથે હંમેશા તત્પર હોય છે એ પણ આજે સાબિત કર્યું છે। ખરેખર આ જે બાળકની પેઢી છે એની ઉપરના કોઈ પણ વ્યક્તિને આપણે પૂછીએ કે વેદમાં હું રામચંદ્રદાસજી મહારાજ કે બધા સંતોને પણ પૂછું તો પણ આ વેદનું જ્ઞાન આપણને નથી, કારણ કે આપણે ક્યાંય ભણ્યા નથી। પણ કોઈના કોઈ માધ્યમથી આ બાળકો કંઈક આપણને ઉપદેશ દેવા માગે છે અને આપણે એમની પાસેથી કંઈક શીખીએ છીએ। અને ખરેખર ડાયલોગ બોલીને કંઈક કરવું એ બહુ સહેલી વાત છે, પણ આટલું સરસ મજાના રેકોર્ડેડની સાથે એની સાથે જે એની પેલી મેળવવી એ ખરેખર ખૂબ અઘરી હોય છે। એ આપણે કોઈના કોઈ માધ્યમથી જાણતા હોઈએ અને એમાં કોઈ જગ્યાએ એવું નથી લાગ્યું કે કોઈ જગ્યાએ કોઈ બાળક ડાયલોગની આગળ ક્યાંક ભૂલી ગયા અથવા તો પાછળ રહ્યા। એટલે ખરેખર આ શક્તિને આપણે ઓળખવાની જરૂર છે, કારણ કે આ કોઈ સામાન્ય શક્તિ નથી અને આપણે ભાગ્યશાળી છે। હું કાયમ કહું છું કે આપણે ભાગ્યશાળી છીએ કે એ આપણા ઘરે છે। એટલે હંમેશા એક વસ્તુ એવી હોય કે જ્યાં સુધી આપણી પાસે હોય ને ત્યાં સુધી આપણે એને ઓળખતા નથી હોતા, પણ ઓળખજો કે આ કોઈ શક્તિ સાધારણ નથી અને ભગવાનની કૃપાથી એ આપણા ઘરે છે। એટલે ખરેખર હું આ શક્તિને વંદન કરું છું અને ખરેખર આવનારી આપણી સદી જે છે એના માટે એકદમ હોપફુલ છું કે ક્યારેય આપણે પાછા નહીં પડીએ જ્યારે આ અસ્તિત્વમાં આવશે। અને બીજો આનંદ એ બાબતનો છે કે મોટા ભાગે હું ઘણા પેરેન્ટ્સને જોઉં છું કે 3 પેઢી, એક પેઢી બીજા પપ્પા, ત્રીજા દાદા। દાખલા તરીકે અહીંયા બેઠા છે બેચરભાઈ છે, પંકજ છે અને એમના બાળકો છે, આરવી શાહ સાહેબ છે, દર્શકભાઈ છે અને અરિયા છે, હરેશ છે, બ્રિજરાજ છે અને એનો બાળક છે। એટલે આવી રીતે 3 પેઢી તો ઓલરેડી હું ઓળખું છું ને એ હાજર છે। એટલે ખરેખર આપણે બધા જ લકી છીએ કે આવી સરસ મજાની આપણને આ શક્તિઓ અનુભૂતિ કરાવે છે। ત્રીજા નંબરમાં મને ગૌરવ એટલા માટે છે આ નૈમિષારણ્યના પ્રિન્સિપાલ અને એની ટીમ ઉપર કે આજના કાર્યક્રમની અંદર સ્વદેશી આયોજન છે આખું, નીરવ સ્વદેશી, કોઈ વસ્તુ ખર્ચો નથી કર્યો બ્રિજેશભાઈ, બધું જ કેપી દાદા બધું જ પોતાનું। મેં કીધું માયક, નહીતર અમારે માયકમાં તો સીડવાળો ઘરનો છોકરો છે, તો કે નહીં આ વખતે અમારે જાતે કરવું છે। માયક ઘરનું, ગાવાવાળા તો છોકરાઓ બધા ઘરના જ, બધું જે કાંઈ આ ચિંતા કરી તમારી કે કદાચ ચોમાસું છે એની તડકો આવે તો શું થાય, જાતે આ બધા ટીચરો અને બાળકોએ તૈયાર કર્યું છે। એટલે આ તમારા બાળકો એવું નથી કે ઓફિસમાં બેસીને જ કામ કરી શકશે, પણ મેદાનમાં જઈને પણ કંઈક કરવાનું જરૂર પડશે તો કરશે। એ આ અને આ એમની ટીમ છે અને ખરેખર આખી આ જે કૃતિ છે એના આર્કિટેક્ટ કોઈ હોય તો અમારા કેયુર અને કંઈક રાકેશ સર કંઈક આમ જો આમ ઊભા ઓલી બાજુ, એકવાર આ બે અને એમની ટીમ માટે જોરદાર તાળી કરી અને એમને આશીર્વાદ આપો કે ખૂબ જ આગળ વધે। અને ખરેખર કાલે 5 વાગે એક વરસાદનું આપણે સારું એવું ઝાપટું આવી ગયું તો બેચરભાઈ મેં પ્રિન્સિपल मैडम ने फ़ोन કર્યો कि मैडम बारिश का तो लग रहा है तो कि मुझे पूरी उम्मीद है मेरे बच्चों पे कि कल बारिश जब तक हमारी कृति चलेगी तब तक नहीं आएगी। એટલે આ છોકરાઓની શક્તિ ડાયરેક્ટ ભગવાનની સાથે જોડાયેલી છે એનું આજે એક પ્રૂફ છે। એટલે ખરેખર
આ પ્રસંગે જાજુ નથી કહેવું, કહેવા માટે તો બહુ જ છે, પણ આ છોકરાઓએ બધું જ કહી દીધું છે. પણ આ છોકરાઓની વાત કરવી હતી એ મેં કરી છે. આ પ્રસંગે ખાસ કરીને ઉપસ્થિત પરમ પૂજ્ય રામચંદ્રદાસજી મહારાજ, વિષ્ણુ સ્વામી મારા ગુરુવર્ય, ઘનશ્યામ સ્વામી, કીર્તન સ્વામી ઉપસ્થિત છે. હંમેશા પ્રોત્સાહિત આપવા માટે અમારા કેપી બાપુ ને બેચરભાઈ તો હોય ને હોય જ. શાહ સાહેબ છે. અને મને તો આનંદ થયો કે હમણાં દીપ પ્રાગટ્ય કરતા હતા ને તો 3 વિશ્વા, રીનાબેન અને મમ્મી 3 જણ દીપ પ્રાગટ્ય કરતા. મેં કીધું બસ આ એક સરસ મજાની એક શોભા સંસ્થાની વધારે છે. એટલે ખરેખર આપ લોકો આવી અને અમારા બાળકોને જે માણ્યા અને પ્રોત્સાહિત કર્યા એના માટે હું ખરેખર ગૌરવ અનુભવું છું. અને ફરીથી હું ભગવાનને, મા સરસ્વતીને પ્રાર્થના કરું કે બસ શક્તિ તો તે આપી જ દીધી છે, પણ માત્ર ને માત્ર અમારા બાળકો ઉપર કોઈની નજર ન લાગે એટલું તું કરજે, બસ બીજું કાંઈ નથી જોતું. અને ખાસ છેલ્લે થોડાક દિવસ પહેલાં રક્તદાન શિબિરનું જે આયોજન થયું એમાં સરદારનગર પણ બહુ સરસ, કારણ કે 2434 બોટલ એ કોઈ સામાન્ય નથી, પણ એના માટેનું યોગદાન જુઓ તો અમારા ગુરુવર્ય વિષ્ણુ સ્વામીએ એમના બધા જ સ્ટુડન્ટ્સને મોકલ્યા, પછી દર્શકભાઈએ મોકલ્યા, પછી અમારા જયરાજ સાંગા એના મિત્રો ને એના પપ્પાના મિત્રો બધાને લઈ આવ્યો કે ના મારી સંસ્થામાં તમારે બ્લડ ડોનેશન. એવી રીતે ઘણા વાલીઓ જે ભણતા હોય બાળકો તો પણ, અને ભણીને વયા ગયા એવા બાળકો પણ કે જે ડૉક્ટરો છે, નહીંતર ડૉક્ટરો ઘણીવાર આવરી, પણ અમારા ડૉક્ટર નીરવભાઈ દર વખતે બધાથી પહેલાં બ્લડ ડોનેશન કરે. અમારો નીરવ એની ટીમમાં આખી લઈને આવી ગયો. એટલે ખરેખર આ કાર્યક્રમને જે બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ આપણા સંસ્થાના સંસ્થાપક પરમ પૂજ્ય ગુરુજીના સ્મૃતિની અંદર આપણે કરીએ છીએ, તો એના માટે પણ ગુરુજી આપ સૌને ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ આપશે. અને ફરીથી આ પ્રસંગને હું ખરેખર બહુ જ માણ્યો છે, એટલા માટે હું ધન્ય ભાગી ગણું છું કે આટલું બધું જ્ઞાન બહુ ટૂંકા સમયની અંદર આપણને સૌને પીરસ્યું. એના માટે હું આનંદ વ્યક્ત કરું છું. અને ખાસ આ સંસ્થા આટલી સરસ મજાની ડેવલપ થઈ રહી છે એના માટે નાનામાં નાની બાબતો આ બાળકોથી લઈ, પ્રિન્સિપાલથી લઈ, અમૃતભાઈથી લઈ અને બધા જ જે ચિંતા કરે છે એના કારણે આપણે હંમેશા કાંઈક ને કાંઈક નવું આપતા રહ્યા છીએ. ફરીથી પ્રિન્સિપાલ મેડમને, એમની સમગ્ર ટીમને, ખાસ કરીને કેયુર રાકેશને અને એમની ટીમને, અને આપને શ્લોક અથવા તો રામાયણ હોય તો આખી રામાયણ જે ગાયને એમની ટીમે જે સંભળાવી, મને આરવી શાહ સાહેબે કીધું કે તમારા પપ્પા એમાં ત્યાં હતા. એટલે તમને અને તમારી સમગ્ર ટીમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. અને ફરીથી હું ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરું કે અમારા બાળકોને એટલી બધી શક્તિ હજી આપો, અને શક્તિ આપ્યા પછી એમની ઉપર કોઈ નજર ન લાગવા દેશો. એ જ પ્રભુ પાસે પ્રાર્થના. અસ્તુ. ધન્યવાદ. समानी वागुति समा